Dear students, in this second lecture of superconductivity, we are going to study the supercurrents and penetration depth, critical field and critical temperature and entropy of the superconductors. Supercurrents and the penetration depth. This is fig 1. Superconductor placed in an external magnetic field. हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सुपरकंडक्टर को रखा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड लगाई हुई है एच ई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ए जी एंड वी कंसिडर a loop superconductor with a plane surface placed in an external magnetic field HE or BE by mu naught acting parallel to the plane surface as shown in fig 1. Consider a rectangular loop ABCD with sides AB and CD lying outside and inside the superconducting region respectively. An application of the Ampere's theorem, that is closed integral B dot dl is equal to mu naught I. अब हमारे पास ये लूप ए बी सी डी जो है, इसमें ए बी जो है अलॉन्ग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ रहा है, यहाँ पर इसमें क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, और जबकि ए डी और सी डी, ए डी जो है वो इनटू द सुपर कंडक्टर जा रहा है और सी डी आउट ऑफ द सुपर कंडक्टर है, सी डी टोटली इनसाइड द सुपर कंडक्टर है। तो सुपर कंडक्टर के अंदर चूँकि रेजिस्टेंस नहीं है तो इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसको मज़ाहमत नहीं होगी और वो क्या सुपर करंट्स कहलाएंगे। और जबकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज सुपर करंट होगा तो उसमें क्या है चेंज ना होने की वजह से क्या है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। और ए बी जो हमारे पास पार्ट है लूप का, वहाँ पर क्या है एच ई ऑफ ए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होगा। देयरफॉर सरफेस करंट पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू एच ई ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ई बाई म्यू नॉट। This current flows along the surface of the superconductor and produce a magnetization which exactly cancels HE inside the superconductor. Since a superconductor has zero electrical resistance, this current will remain almost constant and can flow indefinitely. Such currents are known as supercurrents. क्योंकि हम ज़हमत इस करंट को सुपरकंडक्टर में नहीं मिल रही तो इसलिए उस करंट को हम क्या कहते हैं सुपर करंट कहते हैं। If the width AD or BC of the rectangle ABCD is reduced, the current through the loop remains unchanged as indicated by the Ampere's theorem. This means that the current density must increase as the loop shrinks. For zero loop area, the current density should become infinite, which is physically not possible. Thus, the supercurrents cannot become abruptly zero as one moves from the surface to the interior of the superconductor. This is possible only if the applied magnetic field penetrates the superconductor up to a small thickness near the surface. It means कि जो सुपर कंडक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के बाद इनटू द जो मटेरियल है वो अब्रप्टली ज़ीरो नहीं हो सकता, वो कुछ ना कुछ पेनिट्रेट करेगा। और उस पेनिट्रेशन डेप्थ हम लोग मालूम करना चाहते हैं कि दिस डायग्राम सेकंड fig 2 penetration of an external field HE of is equal to B by mu naught inside a superconductor. The flux density B does not fall abruptly to zero the superconductor but decreases exponentially. हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है पैरेलल टू द सरफेस है और सुपरकंडक्टर के अंदर इसकी वैल्यू जो पेनिट्रेट कितनी कर रही है डिस्टेंस x हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ये ज़ीरो हो जाती है। लेकिन एक डॉटेड लाइन से हमने एक जो एरिया शो किया है, दैट इज़ दिस लेंथ ऑफ डिस्टेंस इज़ नोन एज लैम्डा एल, दैट इज़ पेनिट्रेशन डेप्थ। और यहाँ पर क्या है 1/e ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स ऑफ द फील्ड ऑफ द सरफेस, जो सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड है उसका 1/e इसकी वैल्यू रह जाती है, इसको हम पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं। और ये सुपर कंडक्टर के अंदर इसकी वैल्यू x डिस्टेंस जब बढ़ाती जाती है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। This in fact has been verified exponentially. The penetration of the external magnetic field inside a superconductor is depicted in fig 2. The field decreases exponentially inside the superconductor and is according to London given by the relation He of x is equal to He of naught exponent of minus x over lambda L. Here He of naught represents the magnetic field at the surface and lambda L is called the characteristic length or the penetration depth of the field. Thus, the penetration depth is defined as the distance inside a superconductor where the magnetic field reduced to 1/e of its value at the surface. For superconductors below the critical temperature lambda L, 10⁻³ to 10⁻⁴ angstrom,
क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे इसकी वैल्यू जो है वो 10⁻³ to 10⁻4 है एंगस्ट्रॉम होती है। दस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ फील्ड penetration, it becomes apparent that the supercurrent's density remains finite everywhere, and the equation 2 gives the total surface supercurrents. The penetration depth depends on the temperature. A typical variation is shown in Fig 3 on the next slide. When a specimen of tin is placed in a weak magnetic field, the penetration depth changes only slightly as the temperature rises until the critical temperature is reached, where it increases sharply. Thus, at and above Tc, the field penetrates the metal completely. तो नॉर्मल कंडक्टर के अंदर क्या है, फील्ड जो वो पेनिट्रेट कर जाता है, जबकि सुपर कंडक्टर के अंदर जो है इसकी वैल्यू थोड़ी सी पेनिट्रेट करती है, और वहाँ से हम लोग क्या पेनिट्रेशन डेप्थ को डिफाइन कर रहे हैं। और जबकि अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होगा तो वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, जो जो इसकी कुछ वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो कुछ ना कुछ पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा। फिगर 3 हमने क्या है, वेरिएशन ऑफ द पेनिट्रेशन डेप्थ विद टेम्परेचर 14 पेनिट्रेशन डेप्थ मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर। जब हम लोग क्या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इसकी पेनिट्रेशन डेप्थ है वो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही, जबकि क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाकर इसकी वैल्यू अचानक अब्रप्टली बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर देने पर क्या होगा कि मटेरियल जो वो एक नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा, वहाँ पर क्या हमारे पास जो नॉर्मल कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट इजीली, वाइल जबकि सुपर कंडक्टर में क्या है पेनिट्रेट नहीं करता, और उसकी जो सरफेस में थोड़ी सी पेनिट्रेशन होती है वहाँ से हम लोग क्या है पेनिट्रेशन डेप्थ निकालते हैं। क्रिटिकल फील्ड एंड द क्रिटिकल टेम्परेचर। In 1913, Camerlang Ons observed that a superconductor regains its normal state below the critical temperature if it is placed in a sufficiently strong magnetic field. The value of the magnetic field at which the superconductivity vanishes is called the threshold or the critical field Hc, and is of the order of a few hundred Oersted for most of the pure superconductors. This field changes with temperature, thus we find that the superconducting state is stable only in some definite ranges of the magnetic fields and temperatures. For higher fields and the temperatures, the normal state is more stable. वेरिएशन ऑफ He विथ T फॉर Pb हम लोगों ने डायग्राम 4 में दिखाई है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो Tc एक क्रिटिकल टेम्परेचर रहता है, जिसके बाद क्या है सुपर कंडक्टर जो है वो नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जो पेनिट्रेट नहीं करता सुपर कंडक्टर के अंदर, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो एक Hc(0) एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है, जहाँ पर क्या है कि सुपर कंडक्टर जो है वो नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है। तो जिस तरीके से टेम्परेचर के बढ़ाने से एक सुपर कंडक्टर जो है वो नॉर्मल कंडक्टर बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर ऑन विच अ सुपर कंडक्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ नॉर्मल कंडक्टर। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अगर सुपर कंडक्टर पर अप्लाई करते हैं तो एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है इनटू द मटेरियल एंड द मटेरियल बिकम्स नॉर्मल कंडक्टर। दैट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस तरीके से क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसी तरह एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। द टेम्परेचर एट विच द सुपर कंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल कंडक्टर इज नोन एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। सिमिलरली field magnetic field when applied on the superconductor, then the value at which the magnetic field the superconductor is converted into a normal conductor is known as the critical field of the superconductors. A plot of critical magnetic field versus temperature for lead is shown in the fig 4 of previous slide. Such a plot is also referred to as a magnetic phase diagram. These types of curves are almost parabolic and can be expressed by the relation Hc is equal to Hc(0) into 1 minus T square by Tc square. Here Hc(0) is the critical field at 0 Kelvin. तो ये Hc(0) वो 0 Kelvin के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो जब सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर बन जाए तो उसको Hc(0) हमने कहा। दस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर द क्रिटिकल फील्ड Hc बिकम्स 0। तो जब कि किसी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर T नॉर्मल टेम्परेचर है और Tc जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो जब Tc
हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं तो उस टेम्परेचर पर हमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसकी वैल्यू एच सी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और हमारा नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड जो वो सुपर नॉन कंडक्टर के अंदर क्या है वो पेनिट्रेट कर रहा होगा। तो एच सी ऑफ टी सी दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है वो ज़ीरो आता है। एंट्रोपी ऑफ द सुपरकंडक्टर्स, a marked decrease in entropy is observed during normal to superconducting transition near the critical temperature, which indicates that the superconducting state is more ordered than the normal state. The plots of entropy versus temperature for aluminum in the normal and superconducting states are shown in Fig 5 on the next slide. It has been established that it is the electronic structure of a solid which is mainly affected during the superconducting transition. Some are all the thermally excited electrons in the normal state are ordered in the superconducting state. Such an order may extend up to a distance of the order of 10 to the power -6 meter in type first superconductors. तो हमारे पास क्या है कि हमें पता है जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो एंट्रोपी किसी मटेरियल की कम होती जाती है, और जब हम लोग जब कि हमारे पास ज़ीरो केल्विन पर जाके क्या है एंट्रोपी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो अब जबकि इलेक्ट्रॉन जो थे वो नॉर्मल कंडक्टर के कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो हमें पता है ज़ीरो केल्विन पर जब सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा अपने वैलेंस बैंड में चले जाते हैं, और अब उनकी जो रेजिस्टेंस है वो उन्हें नहीं मिलती और इसकी वजह से एंट्रोपी बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर हम लोग देखें फिग में कि एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर फॉर एल्यूमिनियम के हमारे पास जब हम लोग टेम्परेचर टी सी से नीचे लेके जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है नॉर्मल अगर कोई मटेरियल है तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन में क्या एंट्रोपी कम होती जाती है, जो कि हम लोगों ने मिली जॉल पर मोल पर केल्विन में एंट्रोपी ली हुई है। तो टेम्परेचर कोई अलग से जो दिया हुआ है, जबकि सुपर कंडक्टर स्टेट के अंदर क्या होता है कोई सुपर कंडक्टर अगर हो तो उसमें क्या है ये कर्व बेंड हो जाती है और बिफोर गोइंग टू ज़ीरो केल्विन पहले ही एंट्रोपी ज़ीरो हो जाती है। तो दिस इज डिफरेंट बिटवीन द नॉर्मल स्टेट एंड द सुपर कंडक्टिव स्टेट। अगर कोई मटीरियल हमारे पास क्या है उसको हम नॉर्मल स्टेट में विद द एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्मल स्टेट में रख लें तो इन दोनों कर्वों में हमारे पास क्या फ़र्क इस तरीके से हमारे पास जो है वो नज़र आता है। ये जो फिगर है हमारे पास क्या है ये हमें दे रही है डिफरेंस बिटवीन द सुपर कंडक्टिव स्टेट एंड नॉर्मल कंडक्टिव स्टेट। हम कह सकते हैं कि जब टी सी हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर है तो इसे जब हम मज़ीद टेम्परेचर को लो करते हैं तो जो डिफरेंस आ रहा है नॉर्मल स्टेट और सुपर कंडक्टिव स्टेट के अंदर एंट्रोपी के अंदर वो कर्व जो है वो नॉर्मल स्टेट में क्या है वो स्टेट शो कर रही है ज़ीरो केल्विन पर जाके ज़ीरो एंट्रोपी होती है, जबकि सुपर कंडक्टिव स्टेट के अंदर क्या वो बिफोर गोइंग टू ज़ीरो पहले ही ज़ीरो केल्विन से क्या उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है।